Okay, great. Uh, Now where PDF. स्क्रीन शेयर कर दूँ. Is it visible? स्क्रीन विजिबल आएगा. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, yesterday we discussed about command line operations. In that we discussed which command, where is command, and locate command. To which command is used to find the source path of any command. Where is command is also used to find out source path as well as any additional document of source command. Whereas locate command is used to find out the files and directory. For that we need to update our db. How will I update our db? Sudo update db, and these are the view file commands: cat, tac, head, tel, touch, file. Now we'll discuss about some basic commands: how to make a folder, how to make a copy, what is rm forcefully identify, like that we'll discuss. So first of all, to make a directory in Linux, we need to use mkdir command. Okay, in previous lecture we already discussed how to create a file. Okay, for example, if you want to create a single file, we'll use cat command, tac command. If you want to create empty file, then we'll use touch command. If you want to view file by using head command, we can see tel command से भी हमने देखा था, cat से भी देखा था, tag से भी देखा था. But simply why we use touch command? Touch command is used to change the timestamp. Okay, so अभी timestamp change करने का भी command हमने देखा था, -t से देखा था, -m से भी देखा था. And to identify the content we will use file command. Similarly, हमने फाइल के बारे में पढ़ने के बाद में अब now we will discuss about a directory. Okay, so the first command is a mkdir. Now, if you want to make a directory, अगर आपको directory create करना है, if you want to create a directory, single directory, multiple directory, then we will use mkdir command. Okay, तो first of all मैं एक test2 folder में जाता हूँ, इसके अंदर हम practice करते हैं. Let's remove these. Now folder is empty.
So to make a directory, आपको कमांड कौन सी यूज करना है? Here I will use a command mkdir. mk stands for make, dir stands for directory. So आपको first of all we need to write a command mkdir. So what is a mkdir? We'll check by using man command. Man mkdir. So to make a directory, we will use this mkdir. Okay. Q. Now mk, right now we have ls command. We'll check directory में कुछ है क्या? नहीं. ls. So here I will write mkdir pescoe. Now I'm creating a one folder, one directory. The name of that directory is pescoe. Okay. Check out ls. Now we created a directory. अब ये कलर से समझ में आता है, it is an directory. Directory is nothing but what? Directory is used for a folder. Okay. अब ये directory मैंने create कर दिया है. If you want to remove empty directory, if you want to remove empty directory, then we will use rmdir. Simply we can say that empty directory, single directory, तो आपको rmdir यूज करना है. ओके. rm stands for remove, dir stands for directory. rmdir or name of directory. Check out, we don't have any folder in test2. ओके. फोल्डर अभी जो हमने क्रिएट किया था pescoe, right now we don't have that folder. So simply hash mkdir dir name for what? To make directory. Hash rmdir dir name for what? To remove directory. To remove dir. बट ये कौन सा होना चाहिए? सिंगल ही होना चाहिए. ओके. अगर नेस्टेड डायरेक्टरी है, वी कैन नॉट एबल टू रिमूव दैट डायरेक्टरी बाय यूजिंग rmdir. विल चेक नेस्टेड मतलब क्या होता है. हियर आई विल क्रिएट वन डायरेक्टरी mkdir pescoe. अब उसके अंदर अब cd. व्हाट इज अ cd? cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. ओके. हम क्या कर रहे हैं कि राइट नाउ वी आर इन टेस्ट2. ओके. पार्टीशन के अंदर टेस्ट2 के अंदर हम अवेलेबल है. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, cd ls करता हूँ पहले कि अपने पास फोल्डर है क्या. यस, वी हैव दैट फोल्डर. सो हम उस फोल्डर के अंदर जाने वाले. इफ यू वांट टू एंटर टू दैट फोल्डर, देन वी विल यूज cd pescoe. दैट मीन्स अब देखो यहाँ तक अभी टेस्ट ही आ रहा था. राइट नाउ टेस्ट2 एंड pescoe दोनों भी आ रहा है. दैट मीन्स व्हाट? हम किसके अंदर है? pescoe के अंदर है. अब चेक करो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या कहती है. प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहती है कि होम के अंदर, अरविंद के अंदर टेस्ट2 नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आप वर्क कर रहे थे और उसके अंदर अब करंट में आप pescoe के अंदर है राइट नाउ, उसके अंदर. ओके. सो cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. cd स्टैंड्स फॉर क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी. ओके. अब अंदर जाना है आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर, देन वी विल यूज cd. इवन आपको बाहर आना है, देन वी विल यूज cd डॉट डॉट. बैक साइड को बैक कर्सर जैसे वर्क करता है ना, डॉट डॉट करता है. ओके. सो विल चेक दैट cd डॉट डॉट. राइट नाउ सी pescoe. उसके बाद में टेस्ट2 के अंदर फिर से मैंने cd डॉट डॉट किया तो पार्टीशन पे आएंगे. ओके. सी cd डॉट डॉट. नाउ cd स्लैश टेस्ट2 और ओनली cd किया तो आप रूट डायरेक्टरी पे आते हैं. अब रूट के क्या या रूट डायरेक्टरी के अंदर. या जैसे मैंने बताया आपको, cd स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी. cd डॉट डॉट से हम बाहर आते हैं एंड वन मोर इज देयर ओनली cd, तो आप रूट डायरेक्टरी पे आते हैं डायरेक्टली. ऐसी डायरेक्टरी दिखती है आपको, दैट टर्म कॉल्ड एज अ रूट डायरेक्टरी. चेक आउट. ओनली cd किया है मैंने
तो मैं डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पे आ गया। ओके, तीन याद रखना है आपको। चेंज डायरेक्टरी, cd ओनली आगे फोल्डर में जाने के लिए, cd डॉट डॉट बैक साइड को आने के लिए, और ओनली cd यूज करने के बाद में आप रूट डायरेक्टरी पे आते हैं। राइट नाउ चेक करो, मैं अब टेस्ट 2 में जाऊंगा, cd टेस्ट 2 एंड उसके अंदर PESCUE में। हम क्या बोल रहे थे कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि MKDIR ना RMDIR, MKDIR stands for make a directory, similarly RMDIR is used for second one remove directory, बट ये डायरेक्टरी जो रिमूव करता है ये स्टैंड अलोन डायरेक्टरी करता है, दैट मीन्स सिंगल डायरेक्टरी ही रिमूव कर पाता है। ओके, उसका एग्जांपल हियर MKDIR, हियर आई विल राइट CSC, मैंने सी नाम का एक फोल्डर बनाया। अब इसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं। टेस्ट 2 के अंदर PSU है, PSU के अंदर हम CSC के अंदर है। ओके, ये CSC आपके सामने। ओके, राइट नाउ मैं बैक साइड को जाता हूँ। अब एक्चुअल मेरा PSU के अंदर एक CSC नाम का व्हाट वी से ये है डायरेक्टरी है, एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू डिलीट PSCOE। See, here I got error, RMDR failed to remove PSUE directory not empty. That means what? अगर आपके पास सिंगल डायरेक्टरी है then easily we can remove by using RMDIR। अगर आपके अंदर नेस्टेड डायरेक्टरी है दैट मीन्स डायरेक्टरी के अंदर डेटा है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी मीन्स व्हाट, डेटा है। एज्यूम दैट उसके अंदर फाइल भी रहा तो वो एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं होती। एम्प्टी डायरेक्टरी डिलीट करना है देन सिंपली आई विल प्रेफर यूज RMDIR। अगर एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है then we cannot able to delete remove that directory by using RMDIR। RMDIR से वो डायरेक्टरी रिमूव नहीं कर पाते हैं। सो यूज अनदर कंसेप्ट। ओके, सो बिफोर दैट हम क्या करते हैं, दूसरे कमांड्स देखते हैं। बिफोर दैट लास्ट में हम वो देखेंगे। ओके, सो फॉर दैट RME यूज किया जाता है और वो विल डू द सेम ऑपरेशन हम कर लेंगे। चलो, ls I want to remove this, so use rm remove hyphen rvf। अब इसका मीनिंग है, these are the option। rm stands for remove, हाइपन r stands for रिकर्सिवली। अब नेस्टेड जो वर्ड होता है ना उसे रिकर्सिव कहा जाता है, दैट मीन्स फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, दैट टर्म कॉल्ड एज रिकर्सिवली। यहाँ यूज किया है हाइपन r, दैट मीन्स अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर रिकर्सिव डायरेक्टरी होगी तो भी डिलीट करना है, दैट स्टैंड्स फॉर रिकर्सिवली। v स्टैंड्स फॉर वर्बोज, आपको दिखाई देना चाहिए डिस्प्ले पे कमांड प्रॉम्प्ट पे कि क्या क्या डिलीट हो रहा है। ओके, वी इज नॉट मैंडेटरी, वी मैंडेटरी नहीं है। ओके, मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे वर्क होता है। एंड थर्ड वन इज अ फोर्सफुली, कंपल्सरी, फोर्सफुली आपको डिलीट करना ही है, दैट मीन्स रिकर्सली वर्बोज फोर्सफुली। ओके, अब यहां मैं डायरेक्टरी का नाम लिखता हूं PSU। वर्बोज से क्या होगा, V स्टैंड्स फॉर वर्बोज, इससे क्या होगा कि आपके डिस्प्ले पे दिखाई देगा कि आपने क्या क्या डिलीट किया है, मतलब उसके कंटेंट दिखाई देगा। सी, रिमूव्ड डायरेक्टरी, ये जो होता है, ये मैसेज जो डिस्प्ले होता है इसे वर्बोज कहा जाता है। अगर मैं V पास नहीं करता हूं तो ये मैसेज मुझे नहीं डिस्प्ले होता। अब यहां से मैंने PSCO CSC भी निकाल दिया एंड PSCO डायरेक्टरी भी निकाल दिया, तो ये नेस्टेड हुआ। तो RM RVF यूज करना, इवन हम वो यूज कर सकते हैं, लाइक एक मिनट।
नाउ चेक प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी सेम हमारे पास पी एस सी वी अवेलेबल है, इसके अंदर हम एम के डी आई आर सी एस सी करते हैं। फाइल एग्जिस्ट एलएस या सी एस सी। अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि विदाउट वर्बल्स कैसे करते हैं। लाइक आई वांट टू रिमूव ऑल पी एस सी वी, ये पी एस सी वी मुझे रिमूव करना है। आर एम डी वायर से मैं ट्राई कर रहा हूँ रिमूव करने का, आई एम नॉट एबल टू remove that directory because that directory is a nested directory. That's why I'm trying to rm hyphen rvf। अभी v नहीं यूज करूंगा मैं, verbose। ओके, एंड नेम ऑफ दैट डायरेक्टरी इज अ pscv। डायरेक्टरी का नाम क्या है आपके, pscov। yeah, now I'm trying to remove that। see, फाइल तो रिमूव हो गया बट डिस्प्ले कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज वर्बोज के अंदर आपने ऑप्शन लिया ही नहीं। बट ट्राई करते हैं, हम चेक करते हैं कि पी एस सी ओ की नाम की डायरेक्टरी है क्या। यहाँ दिखाई दे रही है पी एस सी ओ नाम की डायरेक्टरी। नाउ हियर वी कैन नॉट एबल टू व्यू दैट डायरेक्टरी। समझ में आया? हाइपन वी का मतलब होता है वर्बोज। That means if you have a nested directory and want to delete that directory, then do not use rmdir. Instead of that, we can use rem hyphen rvf। I will suggest use rvf। Okay, आप, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि rvf ही यूज करें, बिकॉज क्या होगा इससे कि सी आपका वर्बोज दिखाई देगा यहाँ, मतलब डिस्प्ले हो जाएगा। राइट नाउ सी रिमूव्ड डायरेक्टरी pscoi cscv मैंने रिमूव किया है एंड psco भी रिमूव किया है। ओके, नाउ इसमें और एक क्वेश्चन है, हाउ वी विल मेक nested directories। Right now if you want to make a single directory, then we can able to use directly। okay, ये सिंगल डायरेक्टरी मैंने बना लिया, बट मुझे नेस्टेड बनाना है। तो नेस्टेड बनाने लिए कि हर टाइम में इसके अंदर जाऊँ फिर उसका नेस्ट बनो, ऐसे नहीं होता है। ओके, नेस्टेड बना भी सकते हो। फॉर एग्जांपल सी एम के डी आई आर हाइपन पी फॉर पैरेंट डायरेक्टरी स्लैश पी ई एस सी अंदर सी एस सी, उसके अंदर आपका सेकेंड ईयर है ई एस सी। अब ये नेस्टेड डायरेक्टरी है। ओके, अगर पहले हम बनाते थे डायरेक्टरी तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ता था, पहले हम पी एस सी बनाते थे, उसके अंदर जाते थे, फिर सी एस सी बनाते, फिर उसके अंदर जाते थे, फिर ए सी बनाते थे। ओके, सो हर टाइम अंदर जाके या पर्टिकुलर फोल्डर के एंटर होके उसके बाद में फिर न्यू कोड करना, ये न्यू डायरेक्टरी बनाना ये फिजिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल then simply I can use mkdir in the name of that directory। But if you want to create a multiple, or we can say that if you want to create a nested directory, directory within a directory के अंदर directory बनाना है, at that case आपको क्या करना पड़ेगा, nested यूज करना पड़ेगा। for that hyphen p is use। उसके लिए क्या करते हैं, hyphen p यूज करते हैं। p stands for parent directory। now we'll check। अंदर जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पी एस सी हुई, पी एस सी के अंदर गया, उसके अंदर पी एस सी के अंदर जाते हैं, नाउ एल एस करते हैं। नाउ वी हैव सी एस सी सी, उसके अंदर जाते हैं सी एस सी के, नाउ वी हैव ये सी। ओके, सो नेस्टेड क्रिएट करना है, हाइपन पी यूज करो। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट आप थोड़ा सा बाहर आना है आपको रिवर्स में, और एक बार, एंड नाउ जस्ट एक बार ट्राई करके देखो कि आप डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हो क्या। आर एम डी आई आर पी एस। अब ये क्या शो करेगा, अनेबल टू डिलीट बिकॉज इट इज नॉट एम्प्टी। सेम आप क्या करता हूँ मैं, पी एस सी वी सी एस सी के अंदर जाता हूँ, एलएस करता हूँ। नाउ ऐसे ऐसे के अंदर कुछ है क्या, नहीं। अब इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ मैं, आर एम डी आई आर ऐसे। नाउ चेकआउट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों, बिकॉज ऐसी इज अ एम्प्टी डायरेक्टरी। ओके, उसके अंदर नेस्टेड डायरेक्टरी नहीं था। एंड इसको डिलीट करना है आपको, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आर एम हाइपर आर रिकर्सिव वर्बोज फोर्सफुली, एफ कंपलसरी लिखना है, एफ मतलब फोर्सफुली आपको डिलीट करना है। एंड जस्ट वी नीड टू प्रोवाइड अ पाथ, पीएससी, दैट्स इट।
इसके अंदर के पूरे डायरेक्टरी ये डिलीट कर दिया। सो एम के डी आई आर पढ़ा है मैंने आपको, आर एम डी आई आर भी पढ़ा है, एंड आर एम आर वी एफ भी पढ़ा है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ओके, जैसे एक डायरेक्टरी है मेरे पास, एम के डी आई आर पी ई एस यू है, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आई हैव मल्टीपल फाइल्स। We know that if you want to create a file, then we will use touch command. Touch, name of the file abc ls, I have 10 files. अब ये मैंने न्यू क्या किया है, if you want to create a greater than one file having same name, तो उसका नेम पास करो, उसके बाद में करली ब्रेस ओपन करो, स्टार्टिंग नंबर डालो, दो डॉट दो, एंड नंबर डालो। ओके, जैसे आप देखो आपके सामने है, क्रिएट 100 फाइल्स, स्टार्टिंग नंबर 11, एबीसी नाम होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर करली ब्रेस कंपलसरी, 11 दो डॉट कंपलसरी है, एंड 100, चेकआउट। सी, आई हैव दैट फाइल्स। जितने फाइल्स एम्प्टी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो ये कमांड से। नाउ मेरी क्यूरी जो है मैं वो दिखाता हूँ, एलएस। नाउ मेरे पास पीएससी हुई, बट पीएससी के अंदर नेस्टेड डायरेक्टरी नहीं है, बट फाइल्स आर अवेलेबल। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिलीट पीएससी वे, कैन आई एबल टू डिलीट, कर सकता हूँ क्या मैं डिलीट इसको? No, sir. नो। Maybe. क्यों? व्हाट इज द रीजन? ओके, we cannot able to delete that directory. Reason is simply directory is not empty. Okay, अब मुझे एक बात बताओ, आई वांट टू डिलीट दैट डायरेक्टरी, बट वो रिकर्सिव है क्या? नहीं है। मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है क्या? नहीं है। तो मुझे आर यूज करने की जरूरत है क्या? नहीं। आर एम हाइपन फोर्सफुली पीई, समझ में आ रहा है? ये जो ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज वी नीड टू यूज दैट ऑप्शन। जैसे आर वी एफ है, आर स्टैंड्स फॉर रिकर्सिवली, वी स्टैंड्स फॉर वर्बोज, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोर्सफुली। अब यहाँ मैं अगर वी यूज करता हूं तो पूरे कंटेंट जो पीएसयू के अंदर है वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे, डिलीट हो रहे हैं बोल के। ओके, सो सिंपली फोर्सफुली से करके देखते हैं। सी, या हियर वी नीड टू पास आर एम डिलीट होना चाहिए, आर एम कैन नॉट रिमूव पीएसवी। ओके, आर एम डी आई आर चेक करते हैं। नहीं, आर एम फॉर इंफॉर्मेशन, आर एम डी आई आर, so that means recursive is mandatory. Yeah, recursive is mandatory. Okay, so you cannot able to delete by using f also if it is a what we say, uh, empty नहीं है तो आपको फोर्सफुली ही कंपल्सरी यूज करना पड़ेगा along with r रिकर्सिवली। ओके, हमने डायरेक्टरी बनाया था कि फोल्डर बनाए थे, याद नहीं है मुझे। ओके, forget about that. Here I will use new mkdir abc ls. I have I have abc folders. Now here is one more option I, okay, so ये इसका मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है, रियली डू यू वांट टू डिलीट दिस डायरेक्टरी, दैट मींस आई। सो सिंपली देखो, m hyphen I and the name of directory is abc, ये आपको ऑप्शन देता है, रियली डू यू वांट टू डिलीट दिस, सॉरी एम डी आई आर आएगा, unvalid option, why that option is coming, rem of I abc, yeah, just wait,
touch xyz आरएम के साथ वर्क करते हैं ना, आरएम वर्क करता है मतलब आरएम इज स्पेशली डिजाइन फॉर द फाइल्स। इसमें भी दो ऑप्शन है, आर एम एंड आर एम डी आर। ओके, इट इज फॉर डायरेक्टरी एंड फर्स्ट आर एम इज यूज फॉर फाइल। ओके, ये प्रॉब्लम है इसमें। आरएम किसके लिए यूज होता है? फाइल के लिए होता है। एंड आरएमडीआईआर डायरेक्टरी के। और एक एक्सेप्शनल केस ये है कि आरएम हाइपन एफ, ये किसी पे भी वर्क होता है, फाइल पे भी वर्क होता है एंड डायरेक्टरी पे भी वर्क होता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, डायरेक्टरी जो होता है, रिकर्सिव डायरेक्टरी जो होता है, उसके भी ऊपर वर्क करता है। सो इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा था। नाउ ls will check on file rm hyphen I. Okay, the name of that file is a xyz. Now remove regular empty xyz question mark, मतलब ये आपको पूछ रहा है रियली डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल। एक ऑप्शन दे रहा है। सी, आरएम कमांड आपको क्यों नहीं पढ़ाते, उसके रीजन एंड दैट कि अगर गलती से पार्टीशन डिलीट हो गया है ना तो होल सिस्टम विल बी डिलीटेड। राइट नाउ वी हैव ओनली सिंगल सिस्टम, इजीली वी कैन रिकवर इट। बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सिंगल सिस्टम नहीं रहता है, कंपनी का डेटा सालों साल से वो सर्वर चालू रहता है, उसके ऊपर अवेलेबल होता है, और आपकी गलती से अगर वो डेटा क्रैश हो गया तो रिकवर करना पॉसिबल भी नहीं होता है। फॉर दैट रीजन आपको आरएम कमांड का परमिशन कंपनी में नहीं मिलता है। ओके, फॉर दैट मिलता है बट लोकल लेवल पे मिलता है, और आपको एक स्पेसिफिक स्टोरेज मिलता है, उसके अंदर ही आपको काम करना पड़ता है। ओके, सो फॉर इन दैट केस आपको ऐसा ऑप्शन आया तो आप एक गलती से आपने किया होगा तो आपको फिर से इमेजिन करने के लिए, थिंक करने के लिए टाइम मिलता है। ओके, आपने नो कर दिया तो फाइल एज इट इज रहेगी, आपने एस कर दिया तो फाइल रिमूव हो जाएगी। सी, पहले किया था नो, फाइल डिलीट करने के बाद में तो फाइल मेरी अवेलेबल थी, अब यहाँ मैंने यस किया तो फाइल मेरी रिमूव हो गई। सिमिलरली यहाँ में और एक बार टच एबीसी नाम की फाइल पर, एबीसी नहीं, एक्स वाई जेड नाम की फाइल बनाता हूँ अगेन। या सो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आर एम हाइपन एफ और वो फाइल का नाम देता हूँ एक्स वाई जेड। या सी, पहले वर्क नहीं हो रहा था, राइट नाउ हमारा वो भी वर्क हो गया। साथ में भी आप कर फोर्सफुली तो वो भी हो जाएगा, कुछ इश्यू नहीं है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। प्लस आर एम आई एफ फोर्सफुली, आई एफ एक्स वाई जेड रिमूव डायरेक्ट, फोर्सफुली मतलब डायरेक्टली ही रिमूव हो जाएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फोर्सफुली, वो पूछेगा नहीं आप। ओके, ओनली आई लिखा है तो ही पूछेगा, एफ से नहीं पूछेगा। सो दिस इज द बेसिक कमांड्स, बहुत हेवी नहीं है और ये आपको आने चाहिए। ओके, सो क्या क्या पढ़ा हमने इसके अंदर? First important, to make a directory, mkdir single directory, dir underscore name. To make a parent directory, mkdir hyphen p, pdir cdir, cdir मतलब child dir अंडर, फिर से cdir। ओके, पेरेंट डायरेक्टरी, चाइल्ड डायरेक्टरी ऐसा लिखा है मैंने आपको समझने के लिए, तो ऐसा भी बना सकते हैं हम। हाइपन आर एम डी डी आई आर अंडर स्कोर नेम, इससे क्या होता है, डायरेक्टरी रिमूव हो जाती है। कौन सी? सिंगल वाली। उसके बाद में हमने देखा था आर एम हाइपन आर वी एफ, इससे क्या होता है कि रिकर्सिव डायरेक्टरीज, पेरेंट डायरेक्टरीज। ओके, nested, we can say that nested dir, or we can say that multiple
dir डिलीट होते हैं। हम्म, उसके बाद में हमने पढ़ा था सेम rm हाइपन rf वर्बोज निकाला था, सेम इससे भी नेस्टेड dir डिलीट्स होते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि ये डिस्प्ले नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था rm, ओके। उसके बाद में हमने पढ़ा है rm हाइपर आई। उसके बाद में पढ़ा हमने rm हाइपर एफ, ओके। अब दो ऑप्शंस और बाकी है हमारे, ओके। ये लिख लो हाँ, नहीं तो वीडियो वॉच करो, ये समझ में आएगा बाद में। दो कमांड्स है मेरे रेस्ट ऑफ है, cp एंड mv, ओके। दो कमांड्स कौन से हैं हमारे पास, cp एंड mv। Okay, what is the cp? cp stands for copy and mv stands for move। ओके, सो मुझे कोई बताएगा डिफरेंस क्या है दोनों में, सीपी और एमवी में? Sir, Sir, Yeah. to copy means to copy a file, same file in a another folder, and move means the movement of the whole folder in another directory or something. Okay. Anything else? Anyone और दूसरा कोई है जो बता सकता है? अभी कॉपी क्या क्या कर सकते हैं हम, कंटेंट? हॅलो हाँ। हॅलो सर. समजा सर दोन डिरेक्टरी असतील तर समजा एखादा कंटेंट आपण कॉपी करतोय म्हणजे तो पहिल्या डिरेक्टरी मध्ये पण राहील आणि दुसऱ्या डिरेक्टरी मध्ये पण राहील. पण समजा मूव्ह करतोय फर्स्ट डिरेक्टरी टू सेकंड डिरेक्टरी, तर फक्त तो फर्स्ट डिरेक्टरी सेकंड डिरेक्टरी मध्ये जाईल आणि फर्स्ट डिरेक्टरी मधून तो रिमूव्ह होऊन जाईल पूर्णपणे. ओके, ग्रेट। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम क्या क्या मूव कर सकते हैं, क्या कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो वी हैव डायरेक्टरी एज वेल एज वी हैव अ फाइल, ठीक है ना? हमारे पास डायरेक्टरी भी है और हमारे पास फाइल भी है। तो कैन आई एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कॉपी एंड मूव टू पर्टिकुलर फाइल और टू पर्टिकुलर डायरेक्टरी, कर सकते हैं क्या? येस सर, दोघांना चालेल ना. म्हणजे नेस्टेड डिरेक्टरीला पण चालेल आणि बहुतेक. व्हाट अबाउट कंटेंट ऑफ एनी फाइल? एक फाइल की कंटेंट कॉपी कर सकते हैं क्या? येस सर, ते पण चालेल ना, कारण युजली आपण पण करतो तसं. Okay. See, the main difference is CP stands for copy and in Linux MV stands for rename. Okay. मूव करने के लिए भी मेन टास्क यूज करता है, बट मैक्सिमम जगह सेम। आई विल चेक मैन एमवी, क्या दिखा है यहाँ, मूव रीनेम। फाइल्स के नाम अगर चेंज करना है तो हम मूव कमांड यूज करते हैं लिनक्स में, ओके। तो इसमें दोनों टास्क परफॉर्म होते हैं, जैसे ओम ने बताया, आई थिंक रितिका ने बताया, तो दोनों के भी टास्क सेम है, दोनों भी मीनिंग सेम है। मूव से क्या होता है कि सोर्स डेटा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। When you apply CP, then source will be copied into destination and source as it is remain रहता है। But when we apply MV, source from source to destination, okay, but source डेटा अवेलेबल नहीं होता है, ओके। सो सिंपली ऐसे ही डिफरेंस होता है। अब कॉपी कैसे करना है, एलएस, अभी एबीसी, ओके, एबीसी मुझे कॉपी करना है उसको, उसके लिए फोल्डर चाहिए, mkdir pqr, ना एलएस। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ cp abc को pqr के अंदर,
cd pqr, क्या बोल रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टरी abc, डायरेक्टरी abc ls cd dot dot, just 1 minute, cd abc copy abc pqr, omitting डायरेक्टरी, omitting हो रहा है मतलब, ओके सेम पाथ में है इसलिए रिपीटेड नहीं कर रहा है वो। Here I will make changes. ls I will create one file, touch test. Now we'll check that cp and copy to the pqr. Okay, done. cd pqr ls. Now check out, अभी सोर्स पे भी अवेलेबल होगा और डेस्टिनेशन भी अवेलेबल होगा ls। देखो टेस्ट टू के अंदर टेस्ट अवेलेबल है एज अ फाइल, हम डायरेक्टरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेस्ट टू के अंदर टेस्ट भी अवेलेबल है एंड पीक्यूआर के अगर मैंने मूव किया तो पीक्यूआर के अंदर भी टेस्ट अवेलेबल है। कॉपी से क्या होता है, कंटेंट कॉपी होता है। अच्छा अभी कॉपी के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, ओके सीपी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर एम पी क्यू आर एम डी आई आर पी क्यू आर REM, RVF, REM ABC. Now, get RM test. Now empty है, done. Here we will create one folder mkdir cp data. ये फोल्डर है मेरा, mkdir cp data, ओके ये मैंने फोल्डर बनाया। चेकआउट ls, अंदर जाओ cp data के अंदर। नाउ हियर वी विल क्रिएट 10 फाइल्स, ओके abc नाम के 10 फाइल्स बनाना है मुझे। सो टू क्रिएट एम्प्टी फाइल्स हमारे पास कमांड कौन सी है, टच, फाइल का नाम क्या चाहिए abc। अब इसके ही abc नाम के 1 से 10 चाहिए, देन आई विल यूज करली ब्रेस ओपन 1, 2 डॉट कंपलसरी है, सोर्स नंबर 1, डेस्टिनेशन नंबर 10, करली ब्रेस ओपन। ls करके देखो है मेरे पास फाइल, गुड। नाउ ये मुझे कॉपी करने हैं एक फोल्डर में, उस फोल्डर को बनाता हूं मैं mkdir, उसको नाम देता हूं न्यू डेटा ls। नाउ अब मेरे पास cp डेटा के अंदर नहीं चाहिए हमें, जस्ट वेट, rmdir न्यू डेटा ls। ओनली 10 फाइल्स हैं, बाहर आना है मुझे ls। now cp data is available, here I will create directory mkdir new data, new data, new data, yeah ls, new data is available, go to the new data and ls, no we don't have any data। now again back to that ls। now we need to copy all the files of cp data into new data, एक एक नहीं करना है, ओके इधर आप ऐसे भी कर सकते हो cp cp data, उसके अंदर क्या है हमारा abc 1 2 3, लाइक ऐसे भी हम फाइल्स कॉपी कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, पूरा का पूरा डेटा कॉपी करना है। दैट वाई cp एक तो अंदर जाके करो, नहीं तो फिर यहाँ से ऐसा कर सकते हो, ओके cp data डॉट ऑल,
मतलब उसके अंदर की जो भी फाइल्स है वो किस में जाएंगे, न्यू डेटा के अंदर। फॉर्मेटिंग abc all file, cp cannot start such a file or directory. Just 1 minute. cp data, cp data ls, इसके अंदर तो कॉपी होना चाहिए cp डॉट ऑल टू, क्या नाम था हमारे पास, न्यू डेटा। न्यू डेटा का पाथ क्या है, स्लैश होम स्लैश एडमिन, उसके बाद में टेस्ट टू, उसके अंदर न्यू डेटा। राइट, क्यों आ रहा है, जस्ट 1 minute, गिव मी 1 minute। कॉपी cp data डॉट ऑल फाइल्स होना चाहिए, डॉट नहीं फाइल्स होना चाहिए, ऑल न्यू डेटा या नो। वो डॉट, डॉट का मीनिंग होता है कि डॉट मीन्स हिडन फाइल्स। ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। अब पहले चेक करते हैं कि हम कॉपी हो गया है कि नहीं। सिंपली यूज क्या करना है, सी, डॉट नहीं यूज करना है, मैंने डॉट यूज किया था। न्यू डेटा एलएस करके देखते हैं, फाइल कॉपीड दिखाई दे रहा है, फाइल पूरे के पूरे कॉपीड। ओके, डॉट से क्या होता है, हिडन फाइल्स दिखते हैं। ओके, मैं दिखाता हूं आपको, एल एस डॉट एल एस हाइपन एल 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 एस हाइपन ए, या डॉट से होता है हिडन फाइल्स। उसके फाइल्स चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एल एस हाइपन ए यूज करना पड़ता है। ओके, अभी इसके अंदर हिडन फाइल्स नहीं है, इसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको हिडन फाइल चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, होम डायरेक्टरी के अंदर है ऑप्शन cd होम, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट होम, एंड यहाँ इसके अंदर मेरे फोल्डर के अंदर हिडन फाइल्स होंगे, एल एस हाइपन ए। सी, ये जो डॉट डॉट फाइल्स दिख रहे हैं ना, ये डॉट, ये पूरे हिडन फाइल्स है, ये डॉट फाइल्स पूरे हिडन फाइल्स है। ओके, टू चेक हिडन फाइल एल एस हाइपन ए यूज किया जाता है। ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम हमारा कॉपी पास डिस्कस करेंगे। अभी हमारा डेटा कॉपी हुआ, टॉपिक कॉपी कैसे किया मैंने, पहले आर एम हाइपन आर वी एफ न्यू डेटा। ओके, now ls mkdir न्यू डेटा, ये मैंने लिख लिया। अब मैं कर रहा हूँ कॉपी, कॉपी cp डेटा। ओके, ऑल, डॉट यूज नहीं करना है, ऑल टू न्यू डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेटा कॉपी कर सकते हैं, पूरे के पूरे फाइल्स न्यू डेटा के अंदर जाएंगे। ओके, ls डॉट नाउ, अभी इसके लिए cp डेटा के अंदर डेटा है क्या हमारे पास, विल चेक cd cp डेटा ls। सी, कॉपी सोर्स फाइल एज इट इज रहती है, डेस्टिनेशन फाइल की एक कॉपी ऑल क्रिएट होती है। cp कमांड यूजफुल है हमारे लिए। सी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, when we perform any command operation in linux, it is a mandatory to create a backup file। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी बैकअप होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल की तो बैकअप फाइल 100% होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, ईटीसी एफएस टैब पे कुछ कर रहा हूँ, गलती से मुझे ना एफएस टैब के अंदर मैंने कुछ गलती से मिसिंग पैरामीटर पास कर दिए तो होल सिस्टम विल नॉट वर्क। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैकअप फाइल क्रिएट करना है। बैकअप करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, सीपी कमांड होता है। जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ यहाँ कि मैं बैकअप फाइल कैसे क्रिएट करता हूँ। ओके, cp स्लैश etc fs टैब, ये मेरी एक्चुअल फाइल है। ओके, इसका मैं etc के
fs टैब फिर से डॉट बैकअप डॉट डेट क्या है, सपोज आज 21/11/2020। डन। अब हम फोल्डर करते हैं एटीसी चेक करना है ग्रेप प्रस्ताव हाँ स्लैश ईटीसी फर्स्ट ईटीसी fs available है, just 1 minute. Yeah, we can say that we'll create backup file in of etc. Here I will write, वो दिखाई देने के लिए सर्च होने के लिए प्रॉब्लम दिखा रहा है उनके अंदर टेस्ट 2 के अंदर now it is visible for us cd test2 ls see backup file is created. So इसलिए बैकअप कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको रन चेक भी करना है एज इट इज फाइल है, सही देख सकते हो आप ये फाइल जो एफ अंदर जो फाइल है वही फाइल यहाँ अवेलेबल है। ओके, ये सेम फाइल है। अगर गलती से ये वाई वी क्रिएट दिस बैकअप फाइल क्यों करना है, आप न्यू हो फ्रेशर हो या कोई भी एक्सपर्ट हो वॉट एवर इट मे बी, जो भी आप काम करते हो तो उसका बैकअप फाइल इज अ मैंडेटरी थिंग। क्यों है, क्यों गलती से अगर मैं ये पैरामीटर ये गलती से मुझे मेरे से ना स्लैश निकल गया तो ये सिस्टम बूट होगा क्या फिर नेक्स्ट टाइम, नहीं होगा। या गलती से यहाँ फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन मेरा चेंज होगा 64 से ext3 होगा, अब ये तो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, गलती से मेरे से चेंज हुआ है तो इस टाइम पे अगर गलती से चेंज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम रिबूट करने के टाइम पे आपका डिस्क लोड नहीं होगा। अगर आपके बैकअप फाइल है हमारे पास तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से टर्मिनल से लॉगिन करके ये फाइल रिप्लेस कर सकते हैं और इट इज आपकी जो फाइल्स है वो आपके टेरिस शीट रिकवर। में डालता। हेलो हेलो ओके, सो इससे हम क्या कर सकते हैं, बैकअप फाइल रिकवर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? डज एनीवन हैव एनी क्यूरी? सिंपली सीपी कैसे यूज करना है, सीपी सीपी कैसे यूज करना है, सीपी सोर्स और यहाँ डेस्टिनेशन। ओके, ये सिंगल फाइल के लिए, मल्टीपल फाइल के लिए सीपी सोर्स स्लैश ऑल और डेस्टिनेशन। बैकअप फाइल कैसे करना है क्रिएट, हैश सीपी सोर्स डेस्टिनेशन डॉट बैकअप। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे हम कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट से हम सिंगल फाइल कॉपी कर सकते हैं, सेकंड से हम मल्टीपल फाइल कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरी कॉपी कर सकते हैं एंड थर्ड से हम बैकअप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम एमवी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ से मैं बैकअप फाइल रिमूव करता हूँ एफएस टैब की। सर हाँ सर डेस्टिनेशन पाथ देताना मग होम पासून सुरुवात करावं लागेल? जर तुम्ही त्याच फोल्डर मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये ना दोन कन्सेप्ट आहेत, एक तर क्रिएटिव्ह पाथ पण देऊ शकता किंवा एक ऍक्च्युअल पाथ। ओके, बेस्ट है, मैं एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल रिमूव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल और उसके बाद मैं आपको डिस्कस करता हूँ। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग। अब
एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं, mkdir न्यू डेटा नाउ योर क्वेश्चन इज, अब क्या करना है आपको, ऐसा है कि पाथ देते समय कैसे पाथ देना है। सी, दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो एक्चुअल पाथ है एंड सेकंड वन इज रिलेटिव पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली आई हैव फॉरगॉटन दैट, एक्चुअल पाथ एंड रिलेटिव पाथ। एक्चुअल पाथ में हम होम डायरेक्टरी से हम पाथ देते हैं, रिलेटिव पाथ से हम जिस डायरेक्टरी के अंदर है उसका ही पाथ देते हैं। ओके, डिफरेंस क्या है? सी, mv मेरे पास cp डेटा अवेलेबल है ऑल, और इसके अंदर ही मैं क्या कर रहा हूं, न्यू डेटा दे रहा हूं। इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव पाथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी होम डायरेक्टरी के अंदर, टेस्ट के अंदर, तो इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। एंड सेकंड वन जो है वो एक्चुअल पाथ। सेम कमांड है, दोनों का टास्क एक ही है। सी, दोनों को टास्क एक ही है। यहां देते समय मैं दे रहा हूं एक्चुअल पाथ, होम मेरे डायरेक्टरी का पाथ के अंदर टेस्ट 2 और उसके अंदर न्यू डेटा। दोनों का टास्क, दोनों कमांड का मीनिंग एक ही है। फर्स्ट वन इज अ relative path and second one is a actual path. Is it okay? यस सर। समझ में आया आपको? ओके, ग्रेट। तो आप दोनों कमांड से एक्चुअल परफॉर्म करोगे तो सेम ही आएगा। मैं दोनों से वन बाय वन परफॉर्म करके दिखाता हूँ। कॉपीड, अब पहले ls करके देखते हैं और cp डेटा के अंदर कुछ है क्या ये देखते हैं। cd cp डेटा कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने कौन सा कमांड यूज किया है? mv। कौन सा कमांड यूज किया है? mv। अब हम उसके अंदर से बाहर डेटा से और न्यू डेटा के अंदर जाते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं ls। अब चेक करो डेटा कॉपीड है क्या नहीं, पहले एम्प्टी था, अब डेटा कॉपीड है, हो रहा है, मूव हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में आपको सेंड करूंगा। कहाँ गया? जस्ट एक्चुअल पाथ एंड रिलेटिव पाथ। ओके, क्लियर है आपको? नाउ आप क्या करते हैं कि एक्चुअल, जैसे मैन कमांड में पढ़ा था हमने, मैन कमांड में ls cp data rmt cp data, जैसे हमने मैन कमांड में देखा था, मैन mv का मीनिंग की मूव, दैट मीन्स रीनेम फाइल्स, फाइल रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम अब इसका एक्चुअल मीनिंग देखेंगे, mv न्यू डेटा टू cp डेटा। इसका क्या नाम है कि आपके पास करंट न्यू डेटा नाम की डायरेक्टरी है, आपको उसका नाम चेंज करना है एज अ cp डेटा। सी ls, राइट नाउ आपके पास न्यू डेटा नहीं है, क्या है? cp डेटा। तो ये फोल्डर्स के फाइल के नाम रीनेम करने में मैक्सिमम जगह ये यूज किया जाता है। मतलब एक्चुअल डेटा आपका ओवरराइड हो जाएगा एंड मूव भी हो जाएगा। सो हमने क्या पढ़ा मूव में? मूव के अंदर हमने सोर्स, डेस्टिनेशन पढ़ा, सेकेंड हमने मूव के अंदर मूव सोर्स फाइल एंड न्यू फाइल नेम, ये एक पढ़ा।
उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा एक्चुअल पाथ क्या होता है एंड रिलेटिव पाथ क्या होता है। ओके, कुछ अब आएगा सबको करने का? यस प्रतीक सर. आएगा? प्रतीक नहीं है? आहे. आहे, समजतंय का? प्रतीक, ओम, बाकीचे पण स्टूडेंट है, अब्दुल है क्या? एक तो स्टूडेंट है इसमें। श्रुति? यस सर, समझता है। ओके, ग्रेट। ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके मेरे पास कमांड्स के ये भी है, नोट्स भी है। आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट, एंड उसमें डिटेल्स लिखा है, व्यू फाइल्स, ऑपरेशंस ऑन डायरेक्टरी, या ये पूरे के पूरे सीपीएमई मैंने पढ़ा है, पूरे ऑपरेशन है इसमें, टू मेक वन सिंगल डायरेक्टरी, टू कॉपी करने के लिए, रिमूव करने के लिए, रिकर्सिव्ह, फोर्सफुली। आता जे शिकव काही पॉईंट्स असतील याच्यामध्ये किंवा काही पॉईंट्स नसतील, पण पूर्ण इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये आहे. आय विल शेअर दॅट डॉक्युमेंट. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट यूजर ऑपरेशंस. ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क चालू हो गया हमारा, यूजर ऑपरेशंस. इसके अंदर यूजर रिलेटेड ऑपरेशंस हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पूरे जो भी ऑपरेशंस अवेलेबल है. ओके, सो यूजर रिलेटेड ऑपरेशन के पहले यूजर कौन सा लॉगिन होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. उसके लिए ये फर्स्ट 3 कमांड्स बहुत यूजफुल है. ओके, हु, दूसरा who hyphen a, detail information of user, list out the user, and who am I. अब ये मैक्सिमम जगह नहीं यूज होता है, बट कंपनी में बहुत जगह ये यूज होता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक्चुअल में क्या होता है कि आपको कंपनी में काम करने के लिए एज अ बिग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंपनी में आपके पर्टिकुलर एक यूजर दिया जाता है, एंड आपको एक प्रोफाइल दिया जाता है. वो प्रोफाइल जस्ट इंफॉर्मेटिव होता है और लॉगिन और क्रेडेंशियल दिया जाता है, बट आपके यूजर का नाम, डिटेल नाम वो नहीं दिया जाता है. सो टू फाइंड आउट देम आपको क्या करना पड़ता है, ये 3 कमांड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये यूज करना पड़ता है. सो आप जब हु एंटर करते हो तो आपका लॉगिन एक्टिव यूजर का नाम एंड कौन से टर्मिनल पे टीटीवाई पे काम कर रहे हो और डेट एंड टाइम डिस्प्ले करता है. ओके, तो सी एक्टिव यूजर मेरा नाम है, करंटली आई एम लॉगिंग बाय यूजिंग अरविंद, एंड टीटीवाई टर्मिनल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, तो इसकी इंफॉर्मेशन ये दिखाई दे रहा है. हु हाइपन ए और किया तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे सिस्टम हुआ तब से किसने किसने लॉगिन किया था. यहाँ से सिस्टम बूट हुआ मॉर्निंग 8 o'clock को, फिर लेवल 5 पे वर्क हुआ, फिर लॉगिन हुआ TTY1, सॉरी, TTY1 पे लॉगिन हुआ, एंड उसके बाद ये यूजर लॉगिन हुआ 8:03 को, 8 o'clock. सो ये ऑल इंफॉर्मेशन, सिस्टम बूट कब हुआ, इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है. जैसे ओनली हु से आपको कौन करंट ये है लॉगिन था उसकी इंफॉर्मेशन दिखाता है, और ये सिस्टम कब बूट हुआ इसके हु हाइपन ए से दिखाता है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये यूजर है, अब ये यूजर क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में लॉग कर रहा है. अब एक यूजर अरविंद है, अरविंद क्रिएट्स मल्टीपल यूजर, मैं मल्टीपल यूजर कर सकता हूँ. तो एट दैट टाइम लॉगिन किस में है, तो वो चेक करने के लिए हु एम आई, क्या करना है, हु एम आई. ओके, तो ये चेक करने के बाद में आपका यूजर का नाम वो डिस्प्ले कर. अगर रूट से लॉगिन करते हो अब राइट देखो किससे हूँ, रूट से. पहले मेरा नाम दिखा रहा था, अब राइट नाउ मैं किससे लॉगिन हूँ, रूट से. अब चेक करता हूँ हु एम आई, पहले दिखा रहा था, अब कौन दिखा रहा है, रूट.
सो ये कमांड बहुत यूजफुल है। ओनली हु करने के बाद में एक्चुअल किसका लॉगिन है हुआ है में सेम किसने किसने लॉगिन किया था उसकी इंफॉर्मेशन है। एंड जस्ट रूट से लॉगिन करना हो तो हु एम आई। अभी एक्स वाई जेड से मैंने लॉगिन किया है, एक्स वाई जेड का नाम यहाँ दिखा है। सो सिंपली जस्ट यूजर्स के ऑपरेशंस क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यूजर क्रिएट करना है तो यूजर क्रिएट करने की परमिशन ओनली रूट को होती है। नॉर्मल से मैं अगर यूजर क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे परमिशन नहीं मिलती है, तो इसके लिए सुपर यूजर के प्रिविलेजेस ऐड करने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जिट होता हूँ और मुझे जनरली ऐड यूजर करना है, ऐड यूजर एबीसी। ओके, सी यहाँ ऑप्शन क्या है, ओनली रूट में ऐड अ यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। नॉर्मल यूजर को प्रिविलेजेस दे नहीं है ऐड करने के। तो फॉर एग्जांपल इसको एडिशनल प्रिविलेजेस मुझे देना है तो आई विल राइट सूडो। ओके, सूडो स्टैंड्स सुपर यूजर, सुपर पावर जो भी रहता है उसके प्रिविलेजेस आपको सुपर यूजर की इंफॉर्मेशन प्रिंट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। सुपर यूजर, ऐड यूजर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ऐड यूजर कैसे करना है क्या है, बट जस्ट चेक ऐड यूजर एबीसी। ओके, एबीसी से ऑलरेडी एग्जिस्टेड बोल रहा है ये। टेस्ट 1 करते हैं। सी, अब मैंने पहले ऐड यूजर किया तो नहीं दिखा रहा था, बट इस सूडो से ऐड किया तो ये एडिंग यूजर वन, एडिंग न्यू ग्रुप, जैसे भी यूजर क्रिएट होता है वैसे ऑटोमेटिकली उसका ग्रुप भी क्रिएट होता है। डायरेक्टरी भी स्केलेटन फाइल होती है, कॉपी हो जाती है। बोल रहा है पासवर्ड क्या है, एंटर करो पासवर्ड, फुल नेम देना है, रूम नंबर, वर्क फोन नंबर, जो इंफॉर्मेशन एंड करेक्ट, यस लाइक दैट। सो दैट मीन ऐसे हम यूजर ऐड कर सकते हैं। अब यूजर के बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट सुपर यूजर दैट मीन्स कि आपको प्रिविलेजेस नहीं है। नॉर्मल यूजर जो है आपका हु एम आई ये चेक करेगा, ये सुपर यूजर नहीं है। सुपर यूजर ओनली रूट अवेलेबल है। आप आपके यूजर को भी सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कमांड से विल डिस्कस लेटर, बट राइट नाउ वी हैव ओनली रूट एज अ सुपर यूजर। यही आपके पास सुपर यूजर है, तो इसके साथ में ही आपको काम करना है। बट अभी नॉर्मल यूजर मेरा क्या है, मेरा नॉर्मल यूजर अरविंद है यार, तो उसको सुपर यूजर बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ता है, सूडो करना पड़ता है, और उसके बाद में जो भी कमांड्स है वो मुझे ऐड करने पड़ते हैं। ओके, सो इससे वर्क होता है, बट इसके लिए क्या रहता है, मैंडेटरी एज अ पासवर्ड। पासवर्ड किसका, रूट का। अगर रूट का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, मतलब यूजर ऐड करना है, ऐड करना है, ऐसे काम कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रिविलेजेस ओनली सुपर यूजर को ही अवेलेबल है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट हम आज इतना ही पढ़ेंगे कि यूजर कैसे ऐड करना है एंड ग्रुप कैसे ऐड करना है। ओके, सो ये यूजर एंड ग्रुप क्या है, इसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके लिए, और ये कहाँ चेक किया जाता है, यहाँ ही देखेंगे एलर। नाउ चेक इट, ये जो इंफॉर्मेशन है मेरे डायरेक्टरी था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज ls एंड आफ्टर दैट ll। मेरे पास डायरेक्टरी है, उसका नाम है डायरेक्टरी 1, ये यहाँ दिखाई दे रही है डायरेक्टरी 1। अब ये डायरेक्टरी 1 के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट जो होता है ना, ये परमिशन का पार्ट होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं लेटर ऑन। ये यूजर ऐड करने में, ग्रुप ऐड करने के बाद में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो सिंपली इसको क्या कहते हैं हम, परमिशंस। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे कहते हैं यूजर नेम। ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम यूजर नेम। सेकंड पार्ट जो है इसको कहते हैं हम ग्रुप नेम। यही यूजर नेम एंड ग्रुप नेम। अब डिफरेंस क्या होता है यूजर और ग्रुप में, एज्यूम दैट आई वांट टू डेवलप वन एप्लीकेशन। टू डेवलप दैट एप्लीकेशन वी रिक्वायर्ड 3 इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर, मिडिलवेयर इंजीनियर एंड बैक एंड इंजीनियर। ये हमने वर्डप्रेस में पढ़ा था। एज टू क्रिएट वन एप्लीकेशन, मुझे क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। आई वांट टू क्रिएट वन एप्लीकेशन एंड फॉर दैट ऐप वी रिक्वायर 3 पर्सन्स। फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड डिजाइन करेगा, सेकंड मिडलवेयर जो संभालेगा कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, थर्ड वन इज अ
बैकएंड जो डेटाबेस से मानेगा। ओके, ऐसे 3 इंजीनियर्स मुझे लग रहे हैं। अभी मुझे ये तीनों का मिला के वर्क मिला के मेरा एप्लीकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप पे अंदर, इन तीनों को मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी दिया है वेब ऐप नाम का। ओके, वेब ऐप नाम का इनको डायरेक्टरी मैंने वर्किंग डायरेक्टरी दिया है। ये तीनों क्या करेंगे, आएंगे वो डायरेक्टरी के अंदर काम करेंगे। सो इसके अंदर वेब ऐप क्या हुआ, ग्रुप हो गया। वेब ऐप क्या होगा, ग्रुप हुआ। मतलब क्या है कि वो डायरेक्टरी को ये तीनों के तीनों एक्सेस करेंगे। अब नॉर्मली मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एजे नाम की, जैसे मैंने यहाँ बनाया mkdir और ls करके देखा और करके देखा, तो यहाँ एजे नाम की जो डायरेक्टरी है ये एक्सेस कौन कर पाएगा, ओनली ओनर। एंड ग्रुप का नाम क्या है, ओनर ही है। तो इसे चेंज करना पड़ता है बाद में। दैट मीन्स वी रिक्वायर्ड ग्रुप एज वेल एज यूजर। आपको ग्रुप भी लगेगा और यूजर। आपको कलेक्टिवली वर्क रिक्वायर्ड अ ग्रुप, आपको सिंगल वर्क करना है देन वी रिक्वायर्ड अ ओनली यूजर नेम। ओके, सो इसलिए आपको यूजर भी लगता है। इसके बाद में हम डिटेल भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ऐड यूजर एंड हाउ टू ऐड ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप कैसे बनाना है एंड यूजर कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो दो टाइप्स अलग अलग है, बट फर्स्टली हम सिंपल वाला टाइप्स देखेंगे और उसके बाद में हम हार्ड वाला टाइप देखेंगे। तो सिंपली आपको ग्रुप ऐड करना है, तो आपको प्रिविलेजेस ऐड नहीं, आपको यूजर ऐड करना है, आपको प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है। सिंपल यूजर ऐड करने के लिए ऐड यूजर नाम का कमांड है। क्या कमांड है, ऐड यूजर। आपको क्या करना है, ऐड यूजर, यूजर का नाम स्पेसिफाई करना है। हियर हैश ऐड यूजर, यूजर नेम। बट आपका नेम जो है ना, आपका यूजर जो है ना नॉर्मल यूजर है। सो नॉर्मल यूजर से अगर हम करते हैं परफॉर्म ऑपरेशन तो इट विल जनरेट एन एरर। क्या एरर आएगा, ओनली रूट में ऐड यूजर और ग्रुप टू द सिस्टम। रूट ही परमिशन है, दूसरों को परमिशन नहीं है। तो फॉर दैट रीजन हम क्या करेंगे, हियर जस्ट वी नीड टू ऐड एज अ सूडो। क्या ऐड करेंगे, सूडो। तो ये सुपर यूजर हो जाएगा। सो ये ऐड करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड पासवर्ड। पासवर्ड ऑफ व्हाट, हुम, पासवर्ड ऑफ रूट। रूट का पासवर्ड प्रोवाइड करना है। मेरा रूट का पासवर्ड रेड हैट है। आप लॉगिन करते समय रेड हैट यूजर का, तो जो यूजर ऐड करते हैं तो उस टाइम पे ही आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो आपका भी, आपने जो पासवर्ड दिया है आपके यूजर लॉगिन के लिए, वही पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, या आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के टाइम में भी मैं बता दूंगा कैसे चेंज करना है। ओके, राइट नाउ अब मैं यूजर ऐड करता हूँ। ऐड यूजर SECSC। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, यूजर ऐड SECSC। सिंपल, एक सिंपल थिंग बता रहा हूँ, sudo add user SECSC। जैसे भी आप हिट करते हो यहाँ, तो वन बाय वन लाइन यूजर SECSC ऐड हो रहा है। जैसे भी यूजर क्रिएट करते हो ऑटोमेटिकली ग्रुप विल बी क्रिएटेड। यूजर क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली, आपको जरूरत नहीं है क्रिएट करने की। ऑटोमेटिकली वन ग्रुप आल्सो क्रिएटेड है हैविंग सेम नेम। जैसे यूजर का नाम है वैसे ही ग्रुप का नाम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सी, ग्रुप क्रिएट होने के बाद में एडिंग न्यू यूजर SECSC विथ ग्रुप, मतलब ये एसोसिएशन भी करवाता है। फर्स्ट में यूजर ऐड हो गया, सेकंड में ग्रुप ऐड हो गया, थर्ड में न्यू यूजर SECSC 10004, ये आईडी है एसोसिएटेड विथ SECSC, मतलब ये ग्रुप के साथ में एसोसिएट होगा। उसके बाद में जैसे भी मैंने बताया था, होम डायरेक्टरी आपको याद रखना है, कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था। ओके, रूट डायरेक्टरी का, सॉरी पार्टीशन का। जैसे भी आप यूजर एसोसिएटेड हो गया तो आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी मिल गई हैविंग नेम SECSC। कैसे, जो यूजर है उसके नाम से ही आपको डायरेक्टरी मिलेगी। मतलब आपका जो SECSC यूजर है उसके पूरे के पूरे जो फाइल्स है ये होम के अंदर SECSC के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होता है कि कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम ETC। ये स्केलेटन फाइल्स होते हैं जो एक यूजर को लॉगिन करने के लिए प्री रिक्विजिट जो फाइल्स होते हैं,
ये ऑटोमेटिकली कॉपी होते ऐड यूजर। ओके, अब इसका स्किल का स्केलेटन के बारे में हम थोड़ी देर बाद, वो कैसे दैट कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए आप यूजर ऐड जब करते हो तो यूजर ऐड के लिए ना ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती क्रिएट। यूजर ऐड के टाइम पे आपको वन बाय वन करना पड़ता है और मैनुअल करना पड़ता है, तो विल डिस्कस लेटर। तो याद क्या रखना है, यूजर क्रिएट हो गया, यूजर के साथ में ऑटोमेटिकली ग्रुप क्रिएट हुआ, और उसके बाद में यूजर एंड ग्रुप दोनों एसोसिएटेड हो गए और डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। डायरेक्टरी का नाम क्या होगा, जो यूजर का नाम। अब ये बोल रहा है कि आपको पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड जो देना है आपको दे दो, तुम पासवर्ड दे दो। फुल नेम आपको प्रोवाइड करना है क्या, यस करो तो यस करो, अदरवाइज एम्प्टी रखो। रूम नंबर, वर्क फोन नंबर, अदर। अब ये पूछ रहा है इज दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, नो किया तो यूजर नहीं ऐड होगा, यस किया तो ऐड हो जाएगा। serial I will write yes। नाउ यूजर आपका क्रिएट हुआ, बट आपको पता कैसा चलेगा यूजर ऐड हुआ कि नहीं। तो आपको क्या करना है, यूजर ऐड हुआ कि नहीं चेक करने के बाद में स्लैश etc में एक पास डब्ल्यू नाम की फाइल है, वहां जाके चेक करना। अब ये फाइल है पास डब्ल्यू के नाम की, क्या है, फाइल है। अब फाइल को आपको पता है, हमने व्यू कमांड कल देखे थे। फाइल को चेक करना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कैट ऑप्शन है, टैग ऑप्शन है, हेड ऑप्शन है, टेल ऑप्शन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहां से कमांड यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैट से देख सकते हैं इसको, या टेल से देखते हैं, देखेंगे कैट स्लैश etc स्लैश पास डब्ल्यू। ये देखो बॉटम में आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ आपका यूजर क्रिएट हो गया, दिखाई दे रहा है, ये सी। अब सेम टैग से करना है तो करो, टैग स्लैश etc। याद रखना है यूजर की इंफॉर्मेशन पास डब्ल्यू नाम की फाइल में ही होती। अब ये टॉप का यूजर बॉटम में दिखाएगा, बॉटम का यूजर टॉप में दिखाएगा, इसके लिए आपको यहाँ का या टैग, ये देखो बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। सो आपको याद रहना चाहिए आपको क्या करना है, वेदर आई कैन यूज कैट, वेदर आई कैन यूज टैग, वेदर आई कैन यूज हेड, वेदर आई कैन यूज टेल। अब टेल यूज करके देखते हैं। टेल लास्ट की लाइन दिखाओ, बिकॉज यूजर एट द बॉटम में ऐड होने वाला है। टेल हाइपन en1 स्लैश पास डब्ल्यू, ये आपका यूजर है। सो डिपेंडिंग आपके नॉलेज के हिसाब से आपके क्या यूज करना है ये आप देखो। तो यूजर एडेड, इसके अंदर हम यूजर ऐड हुआ क्या नहीं वो चेक कर सकते हैं। इज इट ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। अब Yes, उसमें लॉग sir. इन करो। अभी लॉग इन हमने यूजर तो बना लिया है ना, तो हम लॉग इन भी कर सकते हैं। तो लॉग इन कैसे करना है, sudo su हाइपन, क्या नाम है यूजर का, cac। सी, अब मैं कहा हूं देखो, ये लॉगिन कैसे किया है, ये सी। अभी हमने कमांड पढ़ा था हु एम आई, ऐसे सी। दैट मीन्स हमारा यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, यस और नो। येस सर. सर झोपले वाटतं सगळे। क्लियर है यूजर कैसे ऐड करना है। सिमिलरली ग्रुप ऐड करना है तो आपको क्या Yes, करना है, sir. sudo ऐड यूजर की जगह ऐड ग्रुप करना है। sudo ऐड ग्रुप, ग्रुप नेम अभी मैं डेवलपर नाम का क्रिएट करता हूँ या टेस्टर नाम का क्रिएट करता हूँ। ओके, ये ग्रुप है मेरा, या वेब एप्लीकेशन डेवलपर करता हूँ, वेब ऐप, आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हो। एंटर। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एडिंग ग्रुप वेब ऐप डेवलपर। जैसे हमने यूजर का इंफॉर्मेशन देखा, जैसे आपको ग्रुप का स्टूडेंट सॉरी ग्रुप का इंफॉर्मेशन देखना है तो आप कैट अगेन यूज कर सकते हो, कैट स्लैश etc। अब पास डब्ल्यू में नहीं जाना है आपको, कहाँ जाना है, ग्रुप्स में। यहाँ बॉटम में देखो, ये आपका वेब डेवलपमेंट नाम का ग्रुप क्रिएट। ओके,
या आप टेल का ये कमांड यूज कर सकते हो, टेल कमांड, टेल -n1/etc/group। चेकआउट, आपका ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ, दिखाई दे रहा है वेब डेवलपमेंट। अब ये कैसे यूज करना है ये लेटर ऑन हम देखेंगे, बट आपको फिलहाल यूजर ऐड करना भी आना चाहिए और ग्रुप ऐड करना भी आना चाहिए। सो कुछ क्वेरी है? किसी को क्वेरी है? हम सेशन क्लोज करने वाले हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। सर हाँ, सर ग्रुप म्हणल्यावर किती पीपल ऍड करू शकतो ग्रुपमध्ये? आपण किती पण करू शकतो, नो रिस्ट्रिक्शन। वी कैन ऐड 100,000। अब जितने यूजर ऐड कर सकते हैं ना उतने ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इशू नहीं, लिमिटेशन भी नहीं है उसमें। एनीथिंग एल्स? हॅलो सर. हम्म, सर प्रत्येक युजरसाठी वेगळा पासवर्ड लागेल ना? हो। आता कसं आहे माहिती का, तू सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे, तुझ्या कंपनीमध्ये 10 युजर्स आहेत, तर 10 युजर तुला सेट करून द्यायचे त्यांना, ओके। आणि तू पासवर्ड सारखाच ठेवू शकते सगळ्यांना, आणि त्या युजरला अलोकेट केल्यानंतर सांगू शकते की युजरला तुम्ही तुमचा पासवर्ड चेंज करून घ्या। आपण यूज जसं बनवतो ना, ईमेल जसं बनवतो तसं त्या टाइप मध्ये पण करू शकते, किंवा तुला अलोकेट करून सी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को यूजर मतलब जो उसका नीचे जो काम वाला है या कंपनी में काम करने वाला है उनके पासवर्ड मालूम होना जरूरी नहीं होता है। जैसे भी आपने उसको पासवर्ड बना के दिया वो बाद में चेंज भी करवा सकता है, एज इट इज रख सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट पर्सन। सो अपना काम क्या है, जस्ट वी क्रिएट अ यूजर एंड प्रोवाइड क्रेडेंशियल टू द एम्प्लॉय, ये अपना काम है। हॅलो सर. हम्म। सर पासवर्ड कसा चेंज करायचा म्हणजे एखाद्या युजरचा? अब प्लस अभी क्या किया, यूजर का नाम क्या किया है, ACCAC है, ओके। तो ACCAC का पासवर्ड मैंने रेड हैट रखा था, तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। sudo SEO हाइपन क्या नाम है अपना, SECAC, SECAC। अब ये लॉगिन हो गया है मैं। अब इसके अंदर पासवर्ड मुझे चेंज करना है इसका, सॉरी सॉरी, एक जस्ट 1 मिनट। सो यस यू, पहले मैं बताता हूँ आपको, रेड हैट ही पासवर्ड है उसका। इसके लिए रूट, राइट नाउ मैं रूट के अंदर हूँ। अब रूट में से मैं जस्ट पासवर्ड कैसे चेंज करना है, पास WD एंड यूजर का नाम देखना है, जो दिखाना है वो नहीं है। कैसे करना है, पास WD और यूजर का नाम देना है। यू मे नॉट हैव प्रिविलेज, सो इसलिए आपको sudo देना है। नॉर्मल यूजर से कर रहे होंगे पासवर्ड चेंज तो करना है, नहीं तो रूट से कर रहे होंगे तो sudo ऐड नहीं करना है, ओके। सी पासवर्ड, अब मैं यहाँ 1 2 3 4 5 देता हूँ, 1 2 3 4 5, डन। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। पासवर्ड चेंज करना है तो जस्ट पास WD एंड ACCC, इधर ये ऐसा कर सकते हैं या हम लॉगिन करके कर सकते हैं। रूट के अंदर लॉगिन करना है तो sudo SEO हाइपन स्पेस उसकी यूजर का नाम रूट। अब रूट के अंदर हूँ। अब देखो मुझे sudo ऐड करने की जरूरत नहीं है, पास WD नेम ऑफ यूजर ESECSE पासवर्ड रेड हैट, पासवर्ड मैच नहीं हुआ, ऐड ऐड सी सक्सेसफुली। यहाँ कहाँ किया था मैंने, यहाँ यह दिस वन, पास WD CAC। यहाँ मैंने sudo लगाया क्या, नहीं, बिकॉज मैं लॉगिन किससे हूँ, रूट से, तो रूट इज अ सुपर यूजर ऑफ ऑल यूजर। अब नॉर्मल यूजर से करता हूँ तो sudo ऐड करना पड़ता है मुझे, okay? कैसे करना है पासवर्ड चेंज, नॉर्मल यूजर से कर रहे हो तो sudo यूजर होगा तो पास WD एंड यूजर नेम। अगर रूट लॉगिन कर रहे हो तो पास WD यूजर नेम, ओके। एनीथिंग एल्स? सर हम्म,
सर आपण DVR मधला पासवर्ड चेंज करू शकतो का? डीव्हीआरचा पासवर्ड कोणता डीव्हीआर आहे तुझं? सीपीचा आहे का? सर कॅमेरासाठी आहे. हो हो, कळालं मला डीव्हीआर. बट मला एक विचारायचं आहे की तो जो डीव्हीआर आहे कोणत्या कंपनीचा आहे? कंपनीचे charges असतात त्याचे. टीपीएस सर पासवर्ड लक्षात आहे का तुझ्या? सर पासवर्ड तर लक्षात आहे, फक्त पण मला काय करायचंय की कोणाला कळू नये, फक्त मला पासवर्ड माहिती राहू, बस असं करायचंय. कारण हा, की तर त्याचा मग आता पासवर्ड एक्झिस्टिंग सगळ्यांना पासवर्ड माहिती आहे का तुला? हो. तर मग एक्झिस्टिंग पासवर्ड मध्ये तू डीव्हीआर ला login कर. त्याच्यामध्ये पासवर्ड चेंज म्हणून ऑप्शन आहे. तर तिथून तू पासवर्ड चेंज करू शकते. काही प्रॉब्लेम तर नाही. सर ते कसं झालंय, ज्या कंपनीचं आहे ना, तर ते पासवर्ड चेंजच करू देत नाही. ते म्हणताय की तुम्हाला कंपनीलाच कॉन्टॅक्ट करावं लागेल ते चेंज आता मग करून देईल असं कंपनीचा म्हणतात. ब्रँड बघ, त्या कंपनी कस्टमर केअर नंबर असतो, तो सिरियल नंबर घे सिस्टमचा, त्या सीपीचा सिरियल नंबर असतो बॅक साईडला, तो कॉपी कर आणि त्या कंपनीला फोन कर, त्यांना सांग. तर ते लगेच तिकडून एक वन टाइम पासवर्ड देतात तुला. त्या वन टाइम पासवर्ड थ्रू लॉग इन कर. पासवर्ड विसरला म्हणून सांग त्यांना. आणि मग ते वन टाइम पासवर्ड देतात. वन टाइम पासवर्ड टाकल्यानंतर मग लगेच लॉग इन होतं डीव्हीआर लॉग तर मग तुझा न्यू पासवर्ड तू टाकू शकते. काय प्रॉब्लेम नाही. ओके सर. हम्म. आणि तर कॉलेजमध्ये अ, जवळपास 140 कॅमेराज आहेत आणि नियर अबाउट 15 का 16 डीव्हीआर आहेत. तर आम्हाला एखाद्या वेळेस पासवर्ड मिसिंग झाल्यानंतर आम्ही तेच करतो. नेक्स्ट. हॅलो सर. बोला. सर ते आता म्हणजे अ, एखाद्या हार्ड डिस्क मधला डेटा रिकव्हर कसा होतो? तुम्ही म्हटलं ते स्टोअर होतं ते म्हणजे अप्स अँड डाऊन असे पिट्स आणि काहीतरी बिट्स याच्यामध्ये. बिट्स अँड बिट्स. ओके. सर मग ते रिकव्हर कसा होतो? म्हणजे मी आता सध्या एक माझा लॅपटॉप रिकव्हर केला. हा हा. तो डेटा म्हणजे कम्प्लिटली डिलीट होता. म्हणजे माझ्याकडून ऍक्सिडेंटली एक पूर्ण ड्राईव्ह फॉर्मॅट झालं होतं. त्याच्यासाठी ना ड्राईव्ह, त्याच्यासाठी एक ऍप्लिकेशन आहे रिफ्यूज म्हणून, काय नाव आहे त्याचं, रिकव्हरी म्हणून एक ऑप्शन आहे. आहे ते. त्या सॉफ्टवेअर थ्रू तुम्ही रिकव्हर करू शकता. रिझन काय, डेटा कम्प्लिटली कधीच डिलीट होत नसतो. जर एखादी डिस्क हार्ड ड्राईव्ह फॉर्मॅट झाली तर डेटा त्याच्यावर असतो, फक्त इंडेक्सिंग फाईल गायब होऊन जाते. तर त्या सॉफ्टवेअरचं काम एकच असतं की डेटा गॅदर करून इंडेक्सिंग फाईल तयार करून डेटा करणे. तर डेटा कधीच डिलीट होत नाही. कंप्लीट फॉर्मॅट करायचं असेल तर त्याला 7 पास फॉर्मॅट करावं लागतं. म्हणजे 7 वेळेस सिस्टीमला फॉर्मॅट करावं लागतं, तेव्हा डेटा जातो. आणि 7 पास फॉर्मॅटिंग सॉफ्टवेअर तुम्हाला नियर अबाउट 2K 3K पर्यंत भेटतात. 2000 3000 पर्यंत भेटतं. जर तुम्ही फॉर्मॅट केलं तरच तुमचा कम्प्लीट डेटा जातो, अदरवाईज तुमचा डेटा जात नाही. 100% रिकव्हर होतो. आणि हे अ, पेड. जर तुझा हॅलो ड्राईव्ह सर. गेला असेल, तुला कॉलेजला गेल्यानंतर त्या सॉफ्टवेअरचं नाव पाठवतो आणि तो सॉफ्टवेअर देऊन त्याला फक्त ड्राईव्ह कोणता डिलीट झाला ते सांग. त्या ड्राईव्हवर त्याला कम्प्लिटली डीप स्कॅन म्हणून एक ऑप्शन येईल, डीप स्कॅन कर. तुझा डेटा मॅक्सिमम रिकव्हर होईल, मॅक्सिमम. हॅलो सर, म्हणजे मी तसं नाही म्हणत आहे. माझ्याकडे सॉफ्टवेअर आहे. मी रिकव्हर केला. पण मला हे नाही कळत आहे, म्हणजे आता तुम्ही म्हटलं ते 7 टाइम्स हे केल्यावर फॉर्मॅट केल्यावर डेटा निघतो. म्हणजे तो डेटा स्टोअर कुठं होतोय मग? आणि मग डिस्कमध्ये एवढा डिस्कमध्ये एक पार्टिशन तयार होतं छोटस. त्याच्यामध्ये तो तुमचा डेटा, जसं रिसायकल बिंग नावाचा कन्सेप्ट ऐकलेला आहे का तू? येस सर. जसं डिलीट केलंस ना तर ते रिसायकल बिल मध्ये स्टोअर झालेलं असतं. कोणाचा फोन असतोय? रिसायकल मध्ये गेलेला असतो आणि तिथून जर तू रिस्टोअर केला तर ऍक्च्युअल तू जिथून डिलीट केलास तिथंच तू वापस येतो. दॅट मीन्स डेटा कधीच डिलीट होत नाही. तुम्ही एखादी फाईल जरी डिलीट केली तर ती रिसायकल बिन मध्ये किंवा हार्ड डिस्कच्या कुठेतरी कॉर्नर मध्ये डेटा स्टोअर असतो. डेटा डिलीट नाही होत तुमचा. आणि तो तर त्यामुळेच त्याचे त्या काही लॉ. सॉफ्टवेअर तो रिकव्हर केला. फक्त इंडेक्स माहिती ना, एक बुक आहे. त्या बुकचं पहिल्या पेजमध्ये पहिला चॅप्टर कोणत्या पेजवर, दुसरा चॅप्टर कोणत्या पेजवर, तिसरा चॅप्टर कोणत्या पेजवर, याची इन्फॉर्मेशन असते. सेम वे डेटाचं पण असंच असते की इंडेक्सिंग फाईल असते. त्या इंडेक्सिंग फाईल सोबत तो डेटा तुमचा स्टोअर केलेला असतो. जसं तुम्ही डिलीट करता तेव्हा ते इंडेक्सिंग फाईल डिलीट होते, ऍक्च्युअल डेटा तसाच असतो, फक्त तो प्लेन करून कुठेतरी दुसरीकडे स्टोअर केला जातो, म्हणून रिकव्हर होतो. आणि 7 पास फॅक्टर केल्यानंतर मग राहत नाही, त्याची इंडेक्सिंग बी राहत नाही, ऍक्च्युअल डेटा बी राहत नाही. ओके.
तर सर एखादी समजा ड्राईव्ह त्याच्यात मी खूप सारा डेटा स्टोअर करतोय आणि तो डिलीट करतोय, तर त्याचे काही लॉस होतील का म्हणजे ड्राईव्हला? ड्राईव्हला नाही, ड्राईव्ह तर empty होऊन जाईल, पण तो डेटा जो आहे तो कुठेतरी स्टोअर होईल आणि तुला हेवी सॉफ्टवेअर यूज करावं लागतील रिकव्हर करण्यासाठी. कसं आहे माहिती का, एकदा इंडेक्सिंग तुम्ही डिलीट केल्यानंतर वापस रिकव्हर करण्यासाठी तुम्हाला तेवढेच पॉवरफुल सॉफ्टवेअर लागतं. येस सर. हा. तर तुम्ही म्हणजे मला डिलीट ऍक्च्युली 12 केल्यानंतर तास डेटा लागले. भेटतो तुम्हाला. हम्म? 12 hours लागले सर ते म्हणजे पूर्ण रिकव्हर करायला एक ड्राईव्ह. हा. 12 आवर्स लावले म्हणजे काय, त्या 12 आवर्स मध्ये फक्त इंडेक्स फाईल तयार झाली तुझी, त्याच्यामुळे तुझा डेटा निघाला. इंडेक्स फाईलवरच असतं पूर्ण. आता बघ ना, इंडेक्स फाईल मध्ये जसं मी म्हटलं बुक्सच्या पहिल्या पेजवर असतं, बुक्स आहे तुझं, आणि त्या बुक्सच्या पहिल्या पेजवर तुझे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. कशाची? कोणता चॅप्टर कुठे आहे त्याची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. तेच जर तू मिस केलंस, तेच इन्फॉर्मेशन तुझ्याकडे